नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं संसद में आज संसद के मॉनसून सत्र के तीसरे सप्ताह का अंतिम दिन है। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में क्या एजेंडा रहने वाला है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे अपने दो सहयोगियों पवन शर्मा और सुरेंद्र कुमार के माध्यम से। संसद के आज के एजेंडे पर विशेष बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं माननीय सांसद चंद्र प्रकाश जोशी, सांसद हैं लोकसभा चित्तौड़गढ़ राजस्थान से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ अमरपाल जी भी हैं जो कि सांसद हैं राज्यसभा उत्तर प्रदेश बीजेपी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम में विशेष चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं संसद में हुई कल की कार्रवाई के बारे में। कल लोकसभा में हंगामे के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मणिपुर माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 पेश किया, जो ध्वनि मत से पारित भी हो गया। वित्त मंत्री ने मणिपुर के पुनर्वास के लिए 543 करोड़ रुपए आवंटित करने की जानकारी दी। There was a GST Council decision which all states had to change in their respective state acts, which was done by state acts, by all states. But because Manipur was under disturbance, they could not do it through the state legislature. Therefore, they brought an ordinance. That ordinance time expired and we couldn't come to the house because the state assembly was still on. Subsequently, we brought one more ordinance, by which time, after the ordinance was passed, by which time you had the state coming under the president's rule. Therefore, that ordinance will have to become a law. So we are amending the state GST bill, amending the state act by introducing this bill to replace the ordinance. So it is a constitutional necessity. It has to be taken up now. If it doesn't pass through now, the state will have difficulty in implementing the GST amendments which have long been approved by the council, and their revenue will get affected because they won't have the authority to charge on certain items on which the GST Council has already passed. All states have also passed because they were able to amend their act. So I would think it's very important constitutionally to serve that state to have its GST collection enabled. Ordinance be converted into a bill and the House should pass it. वहीं राज्यसभा में तटीय पोत परिवहन विधेयक 2025 पारित कर दिया गया। लोकसभा से ये विधेयक 3 अप्रैल को पारित किया गया था। विपक्ष की गतिरोध के बीच पीठासीन उपाध्यक्ष घनश्याम तिवारी ने पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को तटीय पोत परिवहन विधेयक पेश करने को कहा। बिल पेश करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस विधेयक में भारतीय तटीय जल क्षेत्र में व्यापार में लगे जहाजों को विनियमित करने का प्रावधान है और इससे समुद्र के रास्ते तटीय व्यापार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। As you know, this is a very, very significant reform initiative under the dynamic leadership of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, which has particularly unlocked the full potential of India's vast and strategic coastline, which stretches over 11,098 kilometers across 9 coastal states and 4 union territories. To support the goal of growing India's coastal cargo share to 230 million metric ton by 2030, we need a framework that minimizes regulation while maximizing facilitation of growth opportunity in coastal trade. The Coastal Shipping Bill 2025 is designed to make coastal trade easier, more competitive and better integrated with India's overall transport vision. Sir, presently regulation and licensing of coastal shipping is governed by Part 14 of the Maritime Shipping Act 1958. The current bill provides a holistic, forward-looking and progressive legal framework suited to today's commercial realities in line with the globally prevalent cabotage practices. अमरपाल जी,
राज्यसभा को उच्च सदन भी माना जाता है और संभ्रांत सदन भी माना जाता है, लेकिन हम देख रहे थे वित्त मंत्री बोल रही थी और सर्बानंद सोनोवाल जी बोल रहे थे विधेयक के विषय में, और बहुत महत्वपूर्ण विधेयक थे और विशेष रूप से मणिपुर के संदर्भ में विपक्ष काफी कुछ पूछता है, बात करता है, लेकिन यहां पर जब 533 करोड़ रुपए पुनर्वास के लिए उस पर बात कर रही थी वित्त मंत्री सदन के भीतर, तब भी लगातार शोर बना हुआ था सदन के भीतर। दरअसल में विपक्ष का जो रवैया मैंने अनुभव किया, मैं तो पहली बार अभी सदन में आना हुआ है, मुझे 1 साल हुआ, और मुझे देख करके मैं बड़े दुख के साथ कह सकता हूं कि थोड़ी सी भी जो है अगर उनके अंदर एक देश के प्रति अगर प्रेम होता तो देश के ऐसे मुद्दे थे, अभी तक मतलब 195 स्टार प्रश्न थे राज्यसभा के अंदर और 195 जीरो आवर्स, 195 स्पेशल मेंशन जो प्राप्त हुए थे, उसमें से केवल 13 स्टार प्रश्न और 5 जीरो आवर्स और 17 स्पेशल मेंशन जो है पे चर्चा हो पाई। यानी 58 घंटे से ज्यादा विपक्ष ने देश की जो है गरिमा को गिराने का काम किया है। जो समाज के मुद्दे थे, जो देश के जो है किसानों के लिए, गरीबों के लिए, आम जन के मुद्दे थे, उससे पल्ला झाड़ करके पूरे सदन में शोर शराबा करने का काम इस विपक्ष के नेताओं ने किया। चंद्र प्रकाश जी, ये प्रश्न भी बार बार दोहराते मुझे भी जो है अजीब सा लगने लगा है कि प्रश्नकाल के संदर्भ में एक आम सहमति सत्ता पक्ष और विपक्ष के मध्य बनी हुई है कि प्रश्नकाल को बाधित नहीं किया जाएगा, क्योंकि प्रश्नकाल के माध्यम से सांसद संसदीय क्षेत्र, उसकी अपनी जनता और समसामयिक विषयों को उठाते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रश्नकाल भी बाधित हो रहा है। देखिए, संसद का सत्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी राजनीतिक दल हो, सभी उसके जनप्रतिनिधि जो हैं उस सत्र का इंतजार करते हैं कि हमारे क्षेत्र की समस्याओं को, देश के नीति निर्धारण के विषयों पर हम अपनी पार्टी के और अपने दल के विचार को वहां प्रखरता से रखेंगे। किसानों से संबंधित, अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित, क्षेत्र के विकास से संबंधित और देश के नीति निर्धारण से संबंधित विषयों को सदन के पटल पर रखेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि सदन को बार बार बाधित करना और बिना किसी मुद्दे के, मैं सोचता हूं कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में सभी ऑल पार्टी के लोग मिलकर उसको अपना एजेंडा बनाते हैं और उसके आधार पर कौन सा बिल कब आएगा, कौन सी चर्चा कब होगी, ये सारा नीति निर्धारण होता है। लेकिन उसके बावजूद सदन को बाधित करना, मैं सोचता हूं कि जानबूझकर देश का करोड़ों रुपया गंवाना और जनता की आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं। मैं सोचता हूं गोवा का जो हमारे अनुसूचित जनजाति के भाइयों के लिए विशेष जो बिल आया था, चाहे पोत तटीय हमारा जो पोर्ट वाला बिल आया था, इन सारे बिल्स पर जो सार्थक चर्चा होनी चाहिए थी उसको रोका गया। मैं सोचता हूं ऑपरेशन सिंदूर पर जब चर्चा हुई तो निश्चित रूप से देश की जनता ने देखा कि 1947 से लेकर अब तक देश ने क्या क्या, किस किस सरकार के समय क्या हुआ, देश की जनता को जानने का मौका मिला। अब मुझे लगता है वो अब अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं कि हमने ये चर्चा मांगकर गलती कर दी। मुझे लगता है एसआईआर पर जानबूझकर इस विषय को, देश भर के एक सदन को बाधित करने का काम हो रहा है। क्या ये एसआईआर का मुद्दा पहली बार आया? क्या मतदाता सूची परीक्षण का काम पहली बार हो रहा है? बलराम जाखड़ जी जो कांग्रेस पार्टी के आजीवन सदस्य रहे, माननीय लोकसभा के अध्यक्ष रहे, उन्होंने स्वयं ने सदन में कहा है कि संवैधानिक संस्थाओं पर चर्चा सदन के अंदर नहीं हो सकती। ये सब कुछ जानते हुए भी सदन को बाधित करना, मैं सोचता हूं कहीं न कहीं, चूंकि विपक्ष के पास अब मुद्दा नहीं है और जनता को भटकाने का, झूठी बातें और अफवाहें फैलाकर सदन को बाधित करने का काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अमरपाल जी, आपको ये तय करना पड़ेगा आपको संसद पर विश्वास है कि नहीं है, आपको न्यायपालिका पर विश्वास है। अगर न्यायपालिका पर विश्वास है तो न्यायपालिका में ये विषय गया हुआ है और विपक्ष स्वयं लेकर गया हुआ है। सदन के भीतर पीठ से यह भी कहा गया है कि भाई न्यायपालिका में एक तो ये विषय है और दूसरा ये इलेक्शन कमीशन जो है एक स्वायत्त संस्था है और अगर कुछ पूछना है चुनाव प्रक्रिया से जुड़ा हुआ या मतदाता सूची से जुड़ा हुआ कोई विषय तो आप इलेक्शन कमीशन से बात कीजिएगा। क्या है, कांग्रेस की जो एक धारणा है, 60 सालों तक एक परिवार के लोगों ने जो है राज किया
और उनको लगता था कि देश जो है वो जैसा चाहते हैं वैसा चले। जनता जो है इस स्थितियों को बदल दिया है। आज वो इस धारणा को पचा नहीं पा रहे हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो लोकतांत्रिक हमारी व्यवस्थाएं थी उन व्यवस्थाओं के अनुरूप आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। अभी आपने देखा होगा हाल में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार डांट लगाई है और उन्होंने कहा कि भाई आपको जो कुछ बोल रहे हैं वो बोलने का अधिकार है, लेकिन बोलने का अधिकार ये नहीं है कि बिना कुछ जाने समझे जो मन में आए वो बोल दे। वो लगता है उनको कि राजतंत्र, उनके अंदर जो एक परिवार की राजनीतिक सत्ता की लोलुपता थी, वो सोचते थे कि परिवार तो गांधी खानदान से चलता है। और सबसे बड़ी बात है कि साक्ष्य भी मांगे हैं सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर आपके पास साक्ष्य है तो साक्ष्य उपलब्ध करवाएं कि चीन ने कितनी जमीन जो है हमारी कब्जा कर ली है, अन्यथा आप चुप रहें, क्योंकि देशभक्त का ये काम नहीं है। और दूसरा, आज माना जा रहा है कि शायद चुनाव आयोग ने भी सबूत मांगे हैं, जो आक्षेप लगाए गए हैं चुनाव आयोग पर, उसके सबूत यानी कि साक्ष्य पेश करने होंगे राहुल गांधी जी को। रुख करते हैं अपने सहयोगी पवन शर्मा का, जो कि संसद भवन के सामने इस वक्त उपस्थित हैं। जानेंगे आज क्या कुछ विशेष सूचीबद्ध है लोकसभा की कार्रवाई में। पवन, जैसा कि आप कहते हैं कि संसद की कार्रवाई का हर दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये महत्वपूर्ण दिन कई बार जो है भेंट चढ़ जाता है शोर शराबे या फिर डिसरप्शन की। आज की स्थिति क्या है? प्रतिबिंब, क्योंकि हर जो दिन है उस पे लाखों खर्चा होता है संसद में, और जो जितने भी सांसद होते हैं वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को वहां पे उठाना चाहते हैं, जनता के मुद्दों को उठाना चाहते हैं, तो महत्वपूर्ण तो होता ही है, क्योंकि लाखों रुपए का खर्चा जो है वो एक एक मिनट पे होता है, और वहां पे अगर जनता की बात ना हो, व्यवधान हो, तो किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। आज की अगर मैं बात करूं तो प्रश्नकाल सबसे पहले रहता है लोकसभा में, और हर बार जो प्रश्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट ही हैं रहते हैं। आज की अगर मैं बात करूं, लोकसभा की बात करूं, तो हेल्थ मिनिस्ट्री से रिलेटेड 5 प्रश्न है, आयुष से रिलेटेड 5 प्रश्न है, केमिकल और फर्टिलाइजर्स मंत्रालय से संबंधित 2 प्रश्न हैं, विमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड 2 प्रश्न हैं, और एक्सटर्नल अफेयर्स से रिलेटेड 3 प्रश्न हैं। इंपॉर्टेंट कैसे कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं प्रश्न, मैं आपको बता देता हूं। पहला प्रश्न है कि वैकेंट पोस्ट इन डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, पूरे देश में जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसमें कई जगह जो है वो सीटें नहीं भरी है, उसका जनता जो है, जनता को फायदा नहीं होता, कई जगह मशीनें खराब होती हैं, तो उन वैकेंट सीट्स को लेकर जो है वो सवाल है। उसके साथ ही प्रमोशन ऑफ आयुष इन बिहार, आयुष को लगातार जो है बढ़ावा देने की बात है, बिहार से संबंधित प्रश्न है। और इसके साथ ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आंध्र प्रदेश में कैसी स्थिति है उनकी और जम्मू कश्मीर में कैसी स्थिति है उनकी, उससे संबंधित प्रश्न है जो लिस्टेड है। और इसके साथ एक लर्न टू ईट वेल, एक UNEP का कार्यक्रम है कि बच्चे जो हैं वो उनको न्यूट्रिशन खाना मिले, स्कूलों में भी जो मिड डे मिल रहा है उससे भी संबंधित जो है वो अच्छा उनको स्वास्थ्यपूर्वक न्यूट्रिशन वाला खाना मिले, उससे संबंधित प्रश्न है। ये महिला और बाल विकास मंत्रालय से संबंधित प्रश्न है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इसके साथ ही इंक्लूजन ऑफ आयुष्मान ट्रीटमेंट अंडर हेल्थ इंश्योरेंस, बड़े एक सवाल उठता रहता है बार बार कि आयुष मंत्रालय जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस में नहीं आता है, तो उसको हेल्थ इंश्योरेंस के अंडर लाने का सवाल से संबंधित सवाल भी है। तो सारे के सारे सवाल जो हैं जनता से जुड़े हुए, स्वास्थ्य से जुड़े हुए सारे हैं, तो इंपॉर्टेंट है ही। और सबसे विशेष बात के 3 बिल हैं, अगर आज की बात करूं मैं प्रतिबिंब, लोकसभा में 3 बिल लिस्टेड है, वही नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल है, उसके साथ ही एंटी डोपिंग का नेशनल एंटी डोपिंग बिल है, और तीसरा जो इंडियन पोर्ट से बिल है। ये कई दिनों से जो है लिस्टेड है लोकसभा में। सवाल वही के व्यवधान के कारण इन पे चर्चा नहीं हो पा रही, जैसा आपने कहा कि मणिपुर पे कल बात हुई है, पर सबसे खास बात जो प्रतिबिंब वो आज ये है कि जो आज शुक्रवार का दिन है, फ्राइडे का दिन है, और आज जो है प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस भी रहता है, और इसके लिए समय नियत है 2.5 घंटे का, 3:30 से 6 बजे तक का। पर हमने बीते वर्षों में भी देखा है कि जो प्राइवेट मेंबर बिल्स हैं उन पे जो है चर्चा अच्छे से नहीं हो पा रही है। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रख दूं। 17वीं लोकसभा में प्रतिबिंब, लोकसभा में 729 मामले जो रखे गए प्राइवेट मेंबर बिल्स के, विधेयक जो रखे गए लोकसभा में, और राज्यसभा में 705 जो है 705 जो प्राइवेट मेंबर बिल है वो रखे गए।
परंतु हकीकत यह है कि 17वीं लोकसभा में सिर्फ 2 बिलों पर लोकसभा में चर्चा हो पाई, प्राइवेट मेंबर्स बिल, और राज्यसभा में 14 प्राइवेट मेंबर बिल्स पे चर्चा हो पाई, पास कोई भी नहीं हुआ। और अगर मैं इतिहास की बात करूं प्रतिबिंब, तो प्राइवेट मेंबर बिल्स अब तक सिर्फ 14 गैर सरकारी विधेयक जो हैं वो पारित हुए हैं, जो प्राइवेट मेंबर्स ने लाए उनको विधेयक के रूप में लिया गया और वो पारित हुए। और बड़ी बात क्या है कि लास्ट जो प्राइवेट मेंबर बिल संसद में पास हुआ था वो 1970 में हुआ था और आज 2025 हो चुका है। तो प्राइवेट मेंबर बिल्स की जो चीजें हैं, बहुत सारे आज भी बहुत सारे लिस्टेड है लोकसभा में। अगर मैं बात करूं, बहुत सारे बिल इंट्रोड्यूस होने हैं, कुछ कंसिडरेशन के लिए भी बिल है, और वो सारे के सारे बिल इंपॉर्टेंट बिल है। और सबसे महत्वपूर्ण बिल क्या है कि अभी जनसंख्या, क्योंकि भारत जो है दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, तो उससे रिलेटेड प्राइवेट मेंबर बिल्स, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण के खिलाफ को कंट्रोल करने के लिए बिल आए, तो ऐसे बहुत सारे बिल जो है प्राइवेट मेंबर बिल्स लाए हैं। हमारे जो माननीय सांसद आपके साथ बैठे हैं उन्होंने भी वो भी बहुत सारे बिल रखते हैं, पर स्थिति यह है कि उन पर चर्चा नहीं हो पाती, उस पर गंभीरता कम है शायद, तो ये स्थिति बनी हुई है जी। परंतु अगर बिलों की बात करें तो सभी के सभी वो इंपॉर्टेंट बिल है। अगर मैं आज की बात करूं तो मेंटल हेल्थ केयर बिल, कि मेंटल हेल्थ केयर से रिलेटेड बिल आ जाए 2024, ऐसा बिल है, इंट्रोड्यूस होना है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल अमेंडमेंट बिल 2024 है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल में उसमें अमेंडमेंट किया जाए। उसके साथ ही नेशनल कमीशन फॉर वेलफेयर ऑफ मेडिकल नर्सिस, भारत में जो नर्सिस हैं उनके लिए एक कमीशन बने, नेशनल कमीशन बने, उससे संबंधित बिल है। करियर इन गाइडेंस इन स्कूल्स में बच्चों के लिए जो गाइडेंस है करियर की, वो बहुत जरूरी हो जाए, उससे रिलेटेड बिल मेंबर्स ला रहे हैं। और जनसंख्या नियंत्रण पे बिल, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो कहने का मतलब यह है कि प्राइवेट मेंबर बिल जरूर है, पर बीते 10 वर्षों में हमने देखा है कि प्राइवेट मेंबर बिल कम हैं जो वो पारित हुए हैं, और ये बहुत विचारणीय विषय भी है। एक बात मैं और बताना चाहूंगा आपको कि अगर मैं इतिहास की बात करूं तो 1952 में एक मुस्लिम वक्फ विधेयक आया था। ये एक प्राइवेट मेंबर बिल था सैयद मोहम्मद अहमद कासमी का, और इस प्राइवेट बिल को, ये पहला बिल था प्राइवेट बिल जिसे संसद ने पारित किया था। एक प्राइवेट बिल था एक सांसद का, और इसको लाया गया और ये जो बिल जो है पारित हुआ गया। पर अब बीते वर्षों का इतिहास ऐसा बताता है प्रतिबिंब कि जो प्राइवेट मेंबर बिल है, हमने देखा 17वीं लोकसभा की अगर मैं बात करूं तो केन बेतवा पे जो है सिग्रीवाल जी, वो उनका बिल था, उस पर चर्चा भी हुई, पर बीच में वो पूरी तरह से पवन पारित होना एक अलग बात है, लेकिन आपने जैसे बताया कि बहुत सारे जो है प्राइवेट मेंबर बिल जो हैं इंट्रोड्यूस हो चुके हैं सदन के भीतर, और उसमें से कुछ पारित भी हुए हैं, लेकिन ये अधिकार के क्षेत्र में आता है सांसदों के, और आज जो है उसका जो है उपयोग भी करेंगे सदन के भीतर अगर सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलती है। जान लेते हैं दोनों सदनों में आज के सूचीबद्ध कार्यों के बारे में ग्राफिक के माध्यम से। लोकसभा में आज तटीय पोत परिवहन विधेयक 2025 के बारे में राज्यसभा से प्राप्त संदेश की सूचना दी जाएगी। संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 18वीं लोकसभा के 5वें सत्र के शेष भाग के लिए सरकारी कार्य के बारे में वक्तव्य देंगे। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित करेंगे। इसके साथ ही राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 भी विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित किया जाएगा। दोनों ही विधेयक चर्चा के लिए साथ में लिए जाएंगे। पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भारतीय पतन विधेयक 2025 को आगे विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित करेंगे। लोकसभा में प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस का समय शाम 3:30 बजे से 6 बजे तक के लिए तय है। आज प्राइवेट मेंबर्स बिल का दिन है, जिसके अंतर्गत आज 128 बिल इंट्रोड्यूस किए जाने के लिए लिस्टेड हैं। वहीं 6 बिल विचार तथा पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। वहीं राज्यसभा की बात करें तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद संबंधित मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन में शामिल सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में अपना वक्तव्य देंगे। ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री कमलेश पासवान संबंधित मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन में शामिल सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में अपना वक्तव्य देंगे।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी संबंधित मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन में शामिल सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में अपना वक्तव्य देंगे। संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन 268वें सत्र के शेष भाग के लिए सरकारी कार्य के संबंध में एक वक्तव्य देंगे। राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे के लिए लिया जाएगा। इसके अंतर्गत आज 74 बिल इंट्रोड्यूस किए जाने हैं और वहीं 6 बिल विचार तथा पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल गोवा राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व कानून का पुनः समायोजन विधेयक 2024 को लोकसभा द्वारा पारित रूप में विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित करेंगे। हमारे साथ एक और माननीय सांसद जुड़ गए हैं स्टूडियो में। जीएम हरीश बालयोगी जी हैं, सांसद हैं अमलापुरम आंध्र प्रदेश से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो चर्चा कर रहे थे और हमारे सहयोगी भी बता रहे थे, प्राइवेट मेंबर्स बिल लिस्टेड हैं बहुत सारे, कितने महत्वपूर्ण होते हैं? हाउ इम्पोर्टेंट दैट प्राइवेट मेंबर्स बिल्स? सर, इफ आई वुड हैव टू पुट इट अक्रॉस सर, it is so important right now because it also draws the attention of the government, something that which was not earlier aware of them. So when you look at the private member bills which have been pending from the time that I have become a member of parliament, I have introduced almost 3 bills and till today they have not even gone into introduction because you're seeing the constant adjournment disruptions of the house. Today I am not able to bring to that attention. So today if I take a collaborative information about it, about 231 private member bills are pending to be introduced. And it has been there from the last session onwards, last year onwards. So there's so many bills pending that we need to complete them. And if you look at this particular session, if you look at it, it's been almost 3 weeks and we have only functioned for 30 hours. The 30 hours of Lok Sabha is equivalent to 1 week of business proceedings. But today we have done for 3 weeks, we have only done is about 30 hours. So that shows that we have really wasted a lot of the people, taxpayers' money. And today I'm asking is, what is the disruptions about? My question to them is very clear. What is the disruptions about? The Parliament Affairs Minister has given a clear indication regarding the listing what they've asked for. They asked for SIR. SIR is in part of, it is in Supreme Court and is sub judice. You cannot do the discussions in part of the Parliament. Now who else has to give? The Parliament Affairs Minister is giving you a clear information about it that it cannot be discussed. But in follow up everyday constant disruptions and not letting the parliament function. And today in this particular Lok Sabha, if you look at it, it is about approximately 281 members are newcomers, are first time members of parliament. That is more than the half percentage, more than 50%. And right now they are not able to express their views about their own parliament. They're not able to. They're not even, we have been constantly, the Honorable Speaker has been mentioning, at least the question hour, it is very important. Everybody are newcomers, first timers, let them speak. No, they don't want to agree to that. Not during the 0 hour, they don't let the parliament even say, function for even 5-10 minutes. Now we are able to not put forward most of our concerns in the parliament proceedings. So this is something that which is really concerning us, because we are saying today we are coming to the closure of this session, and still we haven't even got multiple times, and our questions have been listed, balloted, and also when it comes to 0 hour it got balloted, but we could not put them up front. And the voter list issue is clearly concerned with इलेक्शन कमीशन, नॉट विद इलेक्शन कमीशन और पार्लियामेंट। हमारे सहयोगी सुरेंद्र कुमार भी मौजूद हैं संसद भवन के सामने और उनसे जानने की कोशिश करेंगे राज्यसभा के भीतर क्या कुछ है, और जो प्राइवेट मेंबर्स बिल है, बिजनेस है, उसके संदर्भ में राज्यसभा में क्या कुछ होने वाला है और अभी तक राज्यसभा में क्या कुछ होता आया है। सुरेंद्र।
प्रतिबिंब, देखिए एजेंडा आपने आज बिजनेस बता ही दिया है किस तरह से कौन कौन से बिल लिस्टेड हैं, लेकिन मैं अगर आपका ध्यान ले जाऊं, आज शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार सभी सांसदों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो उनके लिए देखिए प्रश्नकाल और शून्यकाल के माध्यम से वो लगातार सवाल पूछते ही रहते हैं, बात भी सरकार के जवाब भी मिलते हैं, लेकिन जो सबसे अहम होता है वो है सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना। उसका सबसे बड़ा माध्यम है प्राइवेट मेंबर्स बिल। आज प्राइवेट मेंबर्स की बिल की जो बात करें तो आज 70 से ज़्यादा प्राइवेट मेंबर्स बिल लिस्टेड हैं और उसमें वहीं बात करें तो 6 से ज़्यादा जो हैं वो चर्चा के लिए रखे जाने हैं, जिसमें महत्वपूर्ण फौजिया खान जी का है, पॉस्को वाला एक बिल है, पॉस्को संशोधन विधेयक है, दूसरा है दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की कीमतों को लेकर है, जिसे शक्ति सिंह गोहिल रखेंगे। ऐसे कई महत्वपूर्ण विधेयक हैं जो सदन में आते हैं निजी विधेयक के तौर पर। अगर हम इतिहास का थोड़ा सा रुख करें तो 1952 से लेकर अब तक कई निजी विधेयक आए हैं। अगर हम बात करें 1956 में तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय में 6 निजी विधेयक पारित हुए थे। वहीं उसके आगे बढ़े तो आखिरी निजी विधेयक 1970 में पारित हुआ था। वहीं अगर हम बात करें हाल ही के दिनों की तो 2014 में एक निजी विधेयक लाया गया था जिसका नाम था डीएमके के तिरुचि शिवाजी लाए थे, राइट्स ऑफ रेगुलेशन बिल था वो ट्रांसजेंडर्स को लेकर, लेकिन वो राज्यसभा से पास होने के बाद लोकसभा में अटक गया था। हालांकि 2016 में इसी से जुड़ा हुआ बिल सरकार लेके आई थी, लेकिन उन दोनों में काफ़ी फ़र्क था। सरकार ने बात की थी उस जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनके साथ भेदभाव जो होता है उसको लेकर दंड के तौर के प्रावधान के लिए, लेकिन जो 2014 का विधेयक था उसमें स्वायत्तता की बात थी। वहीं अगर हम बात करें थोड़ा सा और हम बात करें 2020 के, उसमें 2 दशकों की बीते तो 2000 से ज़्यादा प्राइवेट मेंबर्स बिल इंट्रोड्यूस हुए हैं सदन में। वहीं हम बात करें तो जो इनका प्रतिशत रहा है चर्चा के लिए लेना वो मात्र 2.5% है, यानी करीब 50 के करीब निजी विधेयक चर्चा के लिए सदन में आए। तो ये बहुत कम प्रतिशत है, लेकिन जो ध्यान आकर्षित करना होता है सरकार का वो बेहद इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं आपको बात करें पुराने में लेके जाएं तो 1954 में पास हुआ था मुस्लिम वक्फ वाला, जिसकी चर्चा हमारे सहयोगी ने अभी थोड़ी देर पहले की थी। उसके आगे अगर हम बढ़ें तो 3 महत्वपूर्ण बिलों की बात करें, एक बिल की बात करते हैं वो था विधानमंडल की कार्रवाई को लेकर था, जिसकी प्रकाशन की रक्षा संबंधी विधेयक 1956 में फिरोज गांधी द्वारा लाया गया था, जो कानून बना था। दूसरा हम बात करें तो एक विधेयक था जो इसमें जितने सांसदों की पेंशन और सैलरी को लेकर था, जिसे इंट्रोड्यूस किया गया था, जो बिल आया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, जैसा कि आप लगातार जानकारी दे रहे हैं, प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस जो है बहुत महत्वपूर्ण रहता है और लोकसभा के भीतर और राज्यसभा के भीतर आज ये सूचीबद्ध है। जैसा कि माननीय सांसद कह रहे हैं और चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि संसद की कार्रवाई चलती है या नहीं चलती है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। केवल जो है जीएम हरीश बालयोगी जी नहीं बल्कि अलग अलग जो है विपक्ष के भी माननीय सांसद जब कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं तो उनकी भी यही पीड़ा बाहर निकलती है कि बहुत मुश्किल से उनका कोई प्रश्न जो है वो लिस्टेड होता है और प्रश्नकाल नहीं चल पाता है तो वो अपनी बात नहीं रख पाते, अपनी निजी बात या फिर अपने संसदीय क्षेत्र की बात नहीं रख पाते हैं, तो उनको बहुत ही जो है थोड़ा सा क्षुब्ध हो जाते हैं इससे। निश्चित रूप से मैं सोचता हूं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, माननीय सांसद हो, उनके मन की इच्छा होती है कि मैं अपने संसदीय क्षेत्र की कुछ बातें सदन के अंदर रखूं, वहां के विकास से संबंधित, वहां की समस्याओं से संबंधित, देश की नीति निर्धारण से संबंधित। लेकिन जब जानबूझकर बिना किसी विषय के, जैसा कि माननीय बालयोगी जी ने कहा कि यह मामला चुनाव आयोग का है, स्वायत्त संस्था का है, जो कभी सदन में बहस नहीं हो सकती, जिस चुनाव आयोग के विषय पर, उस विषय पर जानबूझकर सदन को बाधित करना, और वो भी किस लिए कि जिन लोगों को लोकतंत्र लिखना नहीं आता वो लोकतंत्र की दुहाई की बात कर रहे हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, ये एक ऐसा ही करके लोकतंत्र करके उन्होंने एक बैनर से
जी एक विरोध प्रदर्शन किया। जिनको लोकतंत्र निकलना नहीं आता वो लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। जो संविधान को कई बार, एक नहीं कई बार तार कर चुके हैं, वो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। जिन्होंने कई बार चुनी हुई राज्य सरकारों को हटा दिया, जिन्होंने आपातकाल लगाया, वो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। मैं सोचता हूं जानबूझकर जिनके पास कोई मुद्दे नहीं बचे हैं, इनको तकलीफ इस बात की है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को 26 देशों ने सर्वोच्च पुरस्कारों से नवाजा। भारत की 25 करोड़ पॉपुलेशन गरीबी रेखा से बाहर आ गई। भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था को दस्तक दे रहा है, जहां 11वें नंबर पर थे। ये लोग जानबूझकर ये चीजें पचा नहीं पा रहे हैं और देश तरक्की की ओर बढ़ रहा है। विकसित भारत की संकल्पना को हम प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे में कहीं न कहीं देश की जनता का ध्यान भटकाना और सदन को बाधित करना और सरकार को कहीं न कहीं अच्छे जो काम कर रही है उसको व्यवधान डालना, ये मुझे लगता है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने अपना एजेंडा बना लिया है। जी अमरपाल जी, असल में क्या है कि देश के विकास का कांग्रेस के पास कोई रोड मैप ही नहीं है। ये जितने विधेयक हैं ये देश के और समाज के लिए कितने उपयोगी हैं, इनको इसकी समझ होती तो ये सत्ता में 60 साल थे और लगातार ये विधेयकों को पारित कराते। नरेंद्र मोदी सरकार ने अभी देखिए कल राज्यसभा में जब तटीय परिवहन पोत जो है विधेयक पारित हुआ तो देश की समुद्री सीमाओं पे और समुद्र के बीच में जो हमारे मछुआरे हैं, हमारे जो ऐसे लोग हैं जो अपना व्यवसाय करते थे, उनके जीवन की जो रेखा है उसको माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के समाज के सामने पटल पे रखा। और देश की समुद्री सीमाएं इससे रक्षा होंगी, चाहे देश का हिमालय हो, देश की समुद्री सीमाएं हैं, ये भारत के सिरमौर है, ये भारत के लिए एक रक्षा कवच भी है और रोजगार के साधन भी है। इसको कांग्रेस ने हमेशा जो है एकदम अछूता रखा देश की सीमाओं को। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सीमाएं सुरक्षित हो रही हैं। मैं आपको बताता हूं अंडमान निकोबार में जो 2300 किलोमीटर फाइबर ऑप्टिकल केबल जो है बिछा करके पूरे जो है उस द्वीपों को सुरक्षित किया, कनेक्टिविटी दिया, और इनकी सरकार ने क्या किया, कच्चातीव जैसे द्वीप को जो है श्रीलंका को दान में दे दिया, जैसे कांग्रेस के बाप की बपौती थी। देश के टुकड़े इनके सामने हुए और देश की जमीनों को भी इन्होंने जो है लोगों को दान देने का काम किया। ये किसने, या देश इनसे सवाल पूछता है, इसलिए उनको विपक्ष में जो है विपक्ष के लायक भी नहीं छोड़ रहा है। देश सब जानता है, समाज जागरूक हो गया है। जी जीएम हरीश जी, यूर स्टेट ऑल्सो अ कोस्टल एरिया। अगर इस बिल की बात करें जिसका जिक्र कर रहे थे, कितना महत्वपूर्ण है, हाउ इम्पोर्टेंट दिस बिल इज रिगार्डिंग द बिल? नाउ इट्स पास्ड, नाउ इट इज पास्ड, बट सर द थिंग व्हाट आई वुड आस्क इज राइट नाउ इज what is the disruption about? My question is very clear. What is the disruption about? There's a statement which is clearly given by the minister, by the Parliament Affairs Minister. Uske baad, what more is that is required? Why are they abruptly disrupting the House till today? Today we have so many more important bills. We have the sports bill. Today we are making sure that tomorrow we can bid in the National Olympics in 2036. And for that we are making our preparations for it. Today they are not letting that go through. They are not even letting that discussion go through, because of which we are delaying. It is delaying. Let us we discuss how important this bill is. It is, sir, with respect to, it has so much of importance right now that today we are making a new federation at the national federation board, at a regional and as well as at the national level. So this will be able to even fine tune the old traditions that we are existing right now. Will be able to pick out more players who will be better equipped, better trained, and will be able to compete at Olympics level. And these things should be adequate to these policy changes have to come into play tomorrow when we are doing our participation at that level. Today we have seen previously so many players who couldn't get the opportunity to participate at an Olympic level. Now this type of a bill, constantly the minister is also making a point on the floor of the House. He's saying it is utmost importance. Why don't you let the session run? But they say no, we will not let it run. Every week we have the BSc meeting. During the BSc meeting they can do the discussions, and during that time we get to decide. Like that only they have asked for Operation Sindoor. That was agreed. We have done the discussion. We have done about 16 hours. We have done the discussion. Because of this adjournments,
because of this, we had to do it overnighters. We had to do it one day. The session ran till late night, 12:50 a.m. But still, we completed Operation Sindoor. We have given we have seen how great we have stood against we have taken out, executed Operation Sindoor, as well as we got the families, the victims who lost their husbands during the Pahalgam attack. We have given back, we have given a response with Operation Sindoor, and the stand we took against Pakistan. We said there is nowhere, we will not tolerate any more terrorism activities. So these things, they are constantly disrupting and not letting the session go through and not letting these bills pass. At least the discussion. The world will not they will not be able to understand what changes we are trying to bring through. ये बात सही है कि अगर सरकार ने कहा भी है, सत्ता पक्ष ने सदन के भीतर, दोनों सदनों के भीतर कहा गया है कि आप किस नियम के भीतर कौन से विषय पर चर्चा करना चाहते हैं, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन बाधित करना सदन को तो उसकी कार्रवाई बाधित होती है। ऑपरेशन सिंदूर पर एक बहुत ही वृहद चर्चा हुई है जो कि बहुत महत्वपूर्ण भी रही है। लेकिन खेल से जुड़े अगर इस विधेयक की बात की जाए, चंद्र प्रकाश जी, राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में सरकार ने नई खेल नीति की भी घोषणा की है, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए भी ये बिल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, निश्चित रूप से जब भारत 2036 की मेजबानी करने को तैयार है, ऐसे में यह महत्वपूर्ण बिल है। इस विधेयक की अनुपस्थिति में हो क्या रहा है, बार बार न्यायालय खेल प्रशासन में बार बार हस्तक्षेप करते हैं। कई महासंघों के चुनाव लंबे समय से नहीं हो पाए, न्यायालय में उलझे हुए हैं। कई महासंघ ऐसी है जहां एडहॉक कमेटियां, तदर्थ समितियां बनी हुई है। इस विधेयक के आने से मैं सोचता हूं कई शक्तियां इनको प्राप्त होगी, चुनाव में पारदर्शिता आएगी, आरटीआई जैसे कानून, इसमें इवन बीसीसीआई में भी उसका उपयोग हो पाएगा। और मैं सोचता हूं कि इन महासंघों में कम से कम 25% पूर्व खिलाड़ी होंगे और अनेक ऐसी चीजें, चाहे महिला हो चाहे बच्चे नाबालिग हो, इनको उत्पीड़न शोषण की सुरक्षा प्रदान होगी। कई ऐसे इश्यूज हैं जो मैं सोचता हूं कि लंबे समय से कई खेल संघ चल रहे हैं, वो कितने समय तक वो अध्यक्ष रह सकता है, ऐसे कई चीजें हैं जो खिलाड़ियों की दृष्टि से और खेल की दृष्टि से और भारत की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बिल है। और पूरा देश चाहता है, पूरे देश के खिलाड़ी चाहते हैं, जो हमारे आने वाले भारत का भविष्य वो चाहते हैं कि ये बिल आए ताकि भारत न सिर्फ 2036 की मेजबानी अच्छे से कर सके, बल्कि हमारे महासंघ, खेल संघ सशक्त बने और उन खेल संघों के माध्यम से हमारे जो नवोदित खिलाड़ी हैं, वो जो हमारी प्रतिभाएं हैं, वो अच्छा प्रदर्शन कर सके, उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सके। इसके लिए बिल भारत सरकार लेकर आ रही है और इसको जानबूझकर रोका जाना, चर्चा नहीं होना, सदन को बाधित करना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि आज जो है एक संभ्रांत राष्ट्र का एक प्रतीक बन गया है, एक मापदंड बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में आपके देश के खिलाड़ी कितने पदक जीतते हैं, क्या प्रदर्शन करते हैं, वो भी एक आधार हो गया है विकसित राष्ट्र होने का। और एक संकल्प लिया गया है 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का। इसलिए भी खेलों पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं स्वयं प्रधानमंत्री, सरकार, और इस विधेयक के माध्यम से उसका और विस्तार करना चाहते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने देखा होगा कि यूथ के प्रति जो है उन्होंने जो एक बीड़ा उठाया, यानी देश के सुदूर बैठे हुए एकदम दूर प्रदेशों में भी उन बच्चों को भी खेल के साथ में जोड़ करके राष्ट्र की भावना से जो जोड़ने का उनका जो ख्याल था, मुझे लगता है खेलो इंडिया जो हमारी नीति है, हमने जो है सांसद खेल कूद प्रतियोगिता माननीय प्रधानमंत्री जी के जो है आह्वान पे पूरे जो है क्षेत्रों में सांसदों ने लग करके अपने अपने क्षेत्रों में करना। इससे क्या हुआ, समाज का वो तबका जो कभी अपने को इससे जुड़ा हुआ ही नहीं महसूस करता था, वो निखर करके आ रहा है। और आज देश ही नहीं, दुनिया के देशों में जाकर के मेडल जो है भारत के लिए लेकर के आ रहा है। पहले एक परिवार और कुछ ऐसे लोगों की ये जो है बपोती समझी जाती थी, और जिससे आज वो सारा जो है जो इनका कॉकस था उसको सब तोड़ दिया गया है। समाज के एकदम सामान्य पृष्ठभूमि के लोग के बच्चे जो है आज इस खेल के माध्यम से भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। इनके समय में खेल कमिंग वेरी फास्ट। आई हैव सीन FIDE chess world championship finale. 2 Indian women were there and one has won
the title. Right, sir. So you understand that it is very clear, sir. We have the potential. Now the government has to take a stand and nurture that and provide the support so that we can get more and more players' participation, as well as we can bring back more and more awards to this. But the problem what is happening is that these kind of bills actually structurizes the framework. Now, which is something that which was lacking. Now the NDA government has taken initiatives to bring that structuralization, that framework, so that we can provide the necessary support for the players' participation. We can increase more players' participation after we get these bills introduced. Right now, these are with accordance to the National Olympics standards, compliance. Now what happens is when you don't get these bills introduced, what happens? Discussion doesn't happen. Now today we are trying constantly to have more discussion on this on the table of the House, because we also will get different perspectives. Even when we are introducing a bill, we are also subjected to get more changes also altered to it, and we will definitely take up. If it's actually adding more value to the bill, definitely we would want to take those changes up. But this not letting the discussion happen, that is where the concern is. चर्चा होना बेहद आवश्यक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्रप्रकाश जी, समय हो रहा है और आप तीनों को संसद की कार्रवाई में सम्मिलित होने के लिए जाना है, लेकिन इसी से लगभग जुड़ा हुआ है राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025। जल्दी से उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं, कितना महत्वपूर्ण? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय खेलों में हम लोग देखें तो डोपिंग नियमों में वैश्विक मानकों से जोड़ने की पहल ये राष्ट्रीय एंटी डोपिंग संशोधन बिल करता है। ये वाडा की स्थापना 1999 में हुई थी। विश्व डोपिंग रोधी कानून को लागू करने के लिए एक वैश्विक संस्था है, 190 देश जुड़े हैं, और मैं सोचता हूं 2036 में जब हम ओलंपिक की मेजबानी कर रहे हैं, ऐसे में यह संशोधन एक संस्थागत सुधार लेके आएगा और वाडा कंप्लाइंट राष्ट्र भारत बनेगा। और इस दृष्टि से यह बिल आना बहुत आवश्यक है कि हम लोग इस संशोधन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय खेलों में निर्बाध रूप से भाग ले सके। मैं सोचता हूं इस बिल की महत्ता समझकर अपोजिशन को भी इस बिल में भाग लेना चाहिए और सार्थक चर्चा में भाग लेकर इस बिल को पास कराने में सहयोग करना चाहिए। GM Baliyogi ji, would you like to add something? Sir, when it comes to this anti-doping, it is very clear that it is compliance to the domestic laws. Right now, what happens is that because when the players are trying to be part of the international areas, we require this doping bill to be introduced because it will structuralize that framework. And right now this has great importance because tomorrow if any player is found to be any of illegal thing, this kind of protects that area. So right now all the domestic laws are going to be in with the World Anti-Doping Code. So this helps the players to, we can nurture them and support them in that direction. थैंक यू GM हरीश बालयोगी जी, चंद्रप्रकाश जी एंड अमरपाल मौर्य जी। आप तीनों को जाना होगा संसद की कार्रवाई में सम्मिलित होने के लिए। और संसद की कार्रवाई की अगर बात करें तो प्रश्नकाल से लोकसभा की शुरुआत होती है। आइए जानते हैं लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान किन मंत्रालयों से संबंधित कौन कौन से तारांकित प्रश्न पूछे जाएंगे। चतरा झारखंड से भारतीय जनता पार्टी के सांसद कालीचरण सिंह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों से जुड़ा सवाल करेंगे। वो जानना चाहेंगे कि स्वास्थ्य विभाग में स्वीकृत कुल पदों की तुलना में वर्तमान में भरे हुए पदों का प्रतिशत कितना है और चालू वर्ष के दौरान बड़ी संख्या में बैकलॉग रिक्तियों को भरने के उद्देश्य से कितने भर्ती अभियान चलाए गए हैं। अनकापल्ली आंध्र प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर CM रमेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से आंध्र प्रदेश में आयुष्मान आरोग्य मंदिर से जुड़े हुए प्रश्न करेंगे। जानना चाहेंगे कि क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की 45 इकाइयों को मंजूरी दी है, यदि हां तो इन आयुष्मान आरोग्य केंद्रों का जिलावार ब्यौरा क्या है। राज्य में विशेष रूप से अनकापल्ली जिले में इन इकाइयों पर स्वीकृत जारी और व्यय की गई राशि का ब्यौरा किया है और उक्त आयुष्मान आरोग्य केंद्रों के कब तक चालू होने की संभावना है। महाराजगंज बिहार से भारतीय जनता पार्टी के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल आयुष मंत्री से प्रश्न करेंगे कि बिहार में आयुर्वेद और आयुष की अन्य प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रस्तावित प्रयासों का ब्यौरा किया है।
बिहार में योग, प्राकृतिक चिकित्सा और यूनानी चिकित्सा से संबंधित कार्यरत संस्थानों और प्रशिक्षण केंद्रों की कुल संख्या का जिलावार ब्यौरा किया है। और क्या सरकार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य में ऐसे और संस्थान और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखती है। खीरी उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के सांसद उत्कर्ष वर्मा मथुर रसायन एवं उर्वरक मंत्री से उर्वरकों की आपूर्ति से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे और जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले को उर्वरकों की किस्मवार कुल कितनी मात्रा में कितनी आपूर्ति की जा रही है। उर्वरकों की तस्करी और कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं। क्या सरकार उर्वरक सब्सिडी की राशि सीधे किसानों के खातों में हस्तांतरित करने का विचार रखती है। यदि रखती है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है। जम्मू और कश्मीर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद जुगल किशोर आयुष मंत्री से पूछेंगे कि राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर में इसकी स्थापना को लेकर आज तक स्थापित आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की कुल संख्या कितनी है। आज तक उक्त केंद्रों से लाभान्वित होने वाले लाभार्थियों की कुल संख्या कितनी है। क्या सरकार ने इन केंद्रों के जन स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का कोई मूल्यांकन किया है। यदि किया है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। भोंगीर तेलंगाना से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद चमाला किरण कुमार रेड्डी महिला एवं बाल विकास मंत्री से अच्छा खाना सीखें कार्यक्रम के तहत प्रश्न करेंगे। प्रश्न ये है कि क्या सरकार ने बच्चों के पोषण से संबंधित विभिन्न विषयों एजेंडों पर सेमिनार और अन्य चर्चाएं बैठकें आयोजित की है जिनमें अच्छा खाना सीखें, जैव विविध आहार और परिवर्तन के वाहक युवा नामक UNEP का कार्यक्रम भी शामिल है। यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। जगत सिंहपुर ओडिशा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद विभू प्रसाद तराई विधि एवं न्याय मंत्री से पूछेंगे कि क्या नया नोटरी पोर्टल कागज रहित आवेदन और डिजिटल प्रमाण पत्र डाउनलोड की सुविधा प्रदान करता है। यदि करता है तो नए पोर्टल का विवरण और मुख्य उद्देश्य क्या है। आज तक नई ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से शामिल किए गए कुल नोटरियों की संख्या कितनी है और न्याय बंधु के अंतर्गत टेली लॉ 2.0 सेवाओं के शुभारंभ के बाद से कितने नागरिक इससे लाभान्वित हुए हैं। बरहामपुर ओडिशा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर प्रदीप कुमार पाणिग्राही आयुष मंत्री से पूछेंगे कि क्या सरकार हाल ही में हुए वैश्विक घटनाओं जिसमें स्वास्थ्य संबंधी उपायों के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण के माध्यम से पारंपरिक चिकित्सा को वैश्विक स्तर पर मुख्यधारा में लाने के लिए भारत और विश्व स्वास्थ्य संगठन के बीच समझौता तथा देश में पारदर्शी बिलिंग, उचित मूल्य निर्धारण और आयुष उपचारों के सुगम एकीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए पारंपरिक चिकित्सा को ICD-11 में शामिल किया जाना शामिल है का लाभ उठा रही हैं। यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। यदि नहीं तो इसके क्या कारण है। कन्याकुमारी तमिलनाडु से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद विजय कुमार उर्फ विजय वसंत आयुष मंत्री से पूछेंगे कि क्या सरकार प्रशिक्षित और प्रमाणित आयुष डॉक्टर्स को विशेष रूप से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी एलोपैथिक दवाइयां लिखने की अनुमति देने का विचार रखती है। यदि रखती है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल से अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री से हरित जलमार्ग संबंधी पहल से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे। गैलेथिया खाड़ी में स्थित इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट की वर्तमान स्थिति क्या है जिसे 2028 में लागू किया जाना है। देश में हार्बर क्राफ्ट ग्रीन ट्रांसमिशन और ग्रीन टेक ट्रांजिशन कार्यक्रमों के माध्यम से हरित जलमार्ग संबंधी पहल को विकसित करने के लिए शुरू की गई परियोजनाओं और उपलब्ध कराई गई धनराशि का ब्यौरा किया है। रायचूर कर्नाटक से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद जी कुमार नायक विधि एवं न्याय मंत्री से साइबर अपराध कानून को मजबूत बनाने से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे और जानेंगे कि क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार देश भर में साइबर अपराध के 52,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं और साइबर धोखाधड़ी के मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यदि ऐसा है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। साइबर अपराध मामलों के अभियोजन में सुधार के लिए न्यायपालिका, प्रवर्तन एजेंसियां और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के बीच सहयोग को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।
आलथूर। केरल से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के सांसद के राधाकृष्णन विदेश मंत्री से पश्चिम एशियाई देशों के साथ संबंध से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या रूस यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया में संघर्ष और पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों सहित हाल के भू राजनीतिक घटनाक्रमों का इनसे प्रभावित देशों के साथ भारत के राजनयिक और आर्थिक संबंधों पर कोई प्रभाव पड़ा है। यदि पड़ा है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। वैश्विक तनावों के बीच देश के सामरिक और ऊर्जा हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है। महासमुंद छत्तीसगढ़ से भारतीय जनता पार्टी की सांसद रूप कुमारी चौधरी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप स्वास्थ्य केंद्रों के उन्नयन से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या सरकार ने देश में विशेष रूप से मध्य प्रदेश के सीधी लोकसभा क्षेत्र में उप स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के उन्नयन के लिए कोई योजना शुरू की है। यदि की है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। वडोदरा गुजरात से भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से पूछेंगे कि देश भर में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को जारी किए गए आयुष्मान कार्डों की संख्या राज्य संघ राज्य क्षेत्रवार कितनी है। शहडोल लोकसभा क्षेत्र में जिलेवार लाभार्थियों की कुल संख्या कितनी है। क्या सरकार ने पिछले 2 वर्षों के दौरान इस योजना के उपयोग में कोई वृद्धि देखी है, दर्ज की है। यदि की है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। इरोड तमिलनाडु से द्रविण मुनित्र कशकम के सांसद के.ई. प्रकाश विदेश मंत्री से विदेश मंत्रालयों द्वारा इंटर्नशिप कार्यक्रम से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे कि क्या मंत्रालय ने अपने इंटर्नशिप कार्यक्रम के बारे में विशेष रूप से देश भर के ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में जागरूकता और सुगमता बढ़ाने के लिए कोई उपाय किए हैं। यदि किए हैं तो इसके लिए अपनाए गए तरीकों का ब्यौरा क्या है। क्या मंत्रालय की इस संबंध में शैक्षणिक संस्थानों, जिला प्राधिकरणों के साथ कोई साझेदारी है। यदि है तो उसका ब्यौरा क्या है। मेरठ उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद अरुण गोविल रसायन एवं उर्वरक मंत्री से मेरठ में उर्वरक कारखानों की स्थापना से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या भारत चीन और रूस से उर्वरक आयात करता है। यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। देश में रासायनिक उर्वरकों की कमी को दूर करने और उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या कार्य योजना है। क्या सरकार का उत्तर प्रदेश में मेरठ में एक रासायनिक उर्वरक कारखाना स्थापित करने का विचार है। यदि है तो उक्त कारखाना कब तक स्थापित होने की संभावना है। मछली शहर उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी की सांसद एडवोकेट प्रिया सरोज आयुष मंत्री से ग्रामीण बाजारों में आयुष औषधियों से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगी और जानेंगी कि देश भर के ग्रामीण बाजारों में उपलब्ध आयुष औषधियों और उत्पादों की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा नियामक ढांचा और तंत्र क्या है और आयुष उत्पादों के लिए समर्पित औषधीय परीक्षण प्रयोगशालाओं की राज्य संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या कितनी है। सिंहभूम झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद जोबा मांझी महिला एवं बाल विकास मंत्री से पूछेंगी कि क्या झारखंड के नक्सल प्रभावित पहाड़ी क्षेत्रों में एकीकृत बाल विकास परियोजना के अंतर्गत संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों की पर्याप्त संख्या न होने के कारण कई पात्र बच्चों और स्तनपान कराने वाली माताओं को इन आंगनवाड़ी केंद्रों का लाभ नहीं मिल पा रहा है। यदि ऐसा है तो क्या सरकार इस पर संज्ञान लेकर झारखंड में 2000 अतिरिक्त आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित करने को मंजूरी देगी। दुर्ग छत्तीसगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के सांसद विजय बघेल विदेश मंत्री से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राजनयिक संपर्क से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे। क्या सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर पर विश्व समुदाय के साथ जुड़ने के लिए संसद सदस्यों का कोई आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल विदेश भेजा था। यदि भेजा था तो उसका ब्यौरा क्या है, उद्देश्य क्या है और इस दौरान किन देशों का दौरा किया गया, दौरे की तिथियां, प्रतिभागियों के नाम और उनकी राजनीतिक संबंधताएं क्या हैं। पालघर महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर हेमंत विष्णु सावरा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से पूछेंगे कि क्या सरकार देश में सिकल सेल रोग से पीड़ित लोगों की संख्या के बारे में जागरूक हैं तो महाराष्ट्र सहित राज्य संघ राज्य क्षेत्रवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। देश में उक्त रोग के उपचार संबंधी सुविधाओं, स्क्रीनिंग और परामर्श सेवाओं की राज्य संघ राज्य क्षेत्रवार प्रगति की वर्तमान स्थिति क्या है।
संसद में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, बने रही संसद टीवी के साथ। लेकिन हम थोड़ी देर में आपको लेकर चलेंगे और दिखाएंगे संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई की सीधी तस्वीरें। नमस्कार।